بسم اللہ الرحمن الرحیم ہو سکتے ہیں تمام ایشوز میں ہماری اور آپ کی رہنمائی کرنے والا دین ہے۔ ایک سیکنڈ بھی ہماری زندگی میں ایسا نہیں آئے گا کہ ہم اپنے دین سے اس طرح کے حالات میں رہنمائی نہ پا سکیں، پریشان ہو جائیں، بکھر جائیں، بلبلائیں، سوچیں کہ اب کیا کریں بھائی، اب تو ایسے حالات آ گئے، اب کیا کریں۔ یہ نوبت کبھی نہیں آئے گی۔ میرے بھائیوں، اس کا یقین رکھو کہ جس دین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا ہے، وہ دین ہمیں سیکنڈ کی رہنمائی کرنے کا ضامن ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا منتخب کردہ دین ہے، کوئی 100 سال 200 سال 500 سال 1000 2000 سال کے لیے نہیں ہے، یہ قیامت تک کے لیے ہے۔ اور قیامت تک کے لیے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا مسئلہ پیدا ہی نہیں ہوگا جس مسئلے میں ہماری رہنمائی ہمارا دین نہ کرے۔ اللہ کی کتاب رہنمائی کرتی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنتیں رہنمائی کرتی ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھی حضرات صحابہ کرام رہنمائی کرتے ہیں کہ کیسے ہمیں نازک حالات میں زندگی گزارنا چاہیے۔ بہرحال آئیے ہم اور آپ اس سلسلے میں گفتگو کریں۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ حالات جو ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں، ملک کے حالات، وطن عزیز کے حالات، مشکلات، پریشانیاں، ہماری اپنی ذات کی مشکلات، ہمارے اپنے سماج اور اپنے معاشرے کی مشکلات، ہمارے اپنے دین اور عقیدے کے اندر پائی جانے والی مشکلات، ہمارے اپنی مقدسات، ہماری مسجدوں کے سلسلے میں مشکلات، ہمارے اپنے مدارس اور تعلیم گاہوں کے سلسلے میں مشکلات، ہماری اپنی ملکیتوں اور ہمارے اپنی اوقاف کی جائیداد وغیرہ سے متعلق مشکلات، اس طرح کی مشکلات یقیناً ہیں۔ اور عالم اسلام پر نظر ڈالیں تو کہیں نہ کہیں دشواریاں صبح و شام ہمیں اور آپ کو سننے کو ملتی ہیں۔ ہمیں اتنا زیادہ اس کے پیچھے نہیں پڑنا ہے یا اسی مسئلے میں الجھ کے نہیں رہ جانا ہے کہ بس ہم یہی فکر کریں کہ بس جاننا چاہیے دنیا میں کیا ہو رہا ہے، یہاں کیا ہو رہا ہے، وہاں کیا ہو رہا ہے۔ اس کے پیچھے پڑ جانا ہی ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ بس ٹھیک ہے، آگاہی رہے، اور آگاہی رہے تو اس معنی میں آگاہی رہے کہ ہم اور آپ ان حالات سے کتاب و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں کیسے زندگی گزاریں، ان حالات سے کیسے نبردآزما ہو، ان حالات سے کیسے کتاب و سنت کی رہنمائی حاصل کریں۔ اسی حد تک وہی اوڑھنا بچھونا نہ بن جائے کہ ہم بس اسی چکر میں دن بھر لگا دیں، میڈیا کے، اخبارات کے، ویڈیوز کے، کمنٹ کے، تبصروں کے اور ایسے انٹرویو وغیرہ کے چکروں میں پڑے رہیں، بس یہی جاننے کی کوشش کریں کہ بس کیا ہو رہا ہے دنیا کے اندر۔ یہ کام ہمارا نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا طریقہ ہماری اور آپ کی زندگی میں آ رہا ہے تو اس کا مطلب راستہ غلط ہے جو ہم نے چن لیا ہے۔ یہ جو انداز چل رہا ہے یہ انداز صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہ ہمارا کام نہیں ہے میرے بھائیوں۔ نازک حالات میں، نازک حالات کے چکر میں پھنسنا یہ کام مسلمان کا نہیں ہے۔ مسلمان کا کام یہ ہے کہ نازک حالات کے بارے میں ہمیں رہنمائی کیا کرتا ہے اللہ کا کلام، ہمیں رہنمائی کیا کرتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، ہمارے اپنے کتاب و سنت کے سچے علماء ہماری کیا رہنمائی کرتے ہیں کتاب و سنت کی روشنی میں، اس کی تلاش ہو، اس کی جستجو ہو، ہم پڑھیں، ہم سیکھیں، ہم جانیں، ہم جڑیں، ہم پوچھیں حالات کا مقابلہ ہمیں کیسے کرنا چاہیے، یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو یہ بات اچھی طرح سے جان لیں۔ تو یہ تو اپنی بات میں جگہ یہ بات طے ہے کہ حالات کی نزاکت ہے، حالات واقعی پیچیدگی کی طرف ہمیں لے جا رہے ہیں، اور حالات پیچیدہ ہوں گے، حالات پیچیدہ ہوں گے۔ جو ہم قیامت کی طرف جا رہے ہیں اسی طرح سے ہماری زندگی کے ہمارے حالات میں ضرور مشکلات پیدا ہوں گی۔ ہم قرب قیامت کی طرف جائیں گے، ابتلاءات بڑھتی جائیں گی، آزمائشیں بڑھتی جائیں گی، آفتیں بلائیں بڑھتی جائیں گی، فتنوں کا گھیرا بڑھتا جائے گا۔ یہ سب سے بنیادی مسئلہ ہے۔ تو موجودہ حالات میں ہمیں کیا کرنا ہے، میں یہاں یہ بات بھی آپ کے سامنے بلا وجہ تفصیل میں جا کر کے آپ کو بتلاؤں اور اخبار کی رپورٹیں آپ کے سامنے پیش کروں، کمنٹ کیا ہے، تبصرے کیا ہے، وہ کیا بولتا ہے، یہ کیا بولتا ہے، یہ سب چکروں پر مجھے جانا بھی نہیں ہے، بات کرنا بھی نہیں ہے، اور بات کرنا کتاب و سنت کی روشنی میں درست بھی نہیں ہے کہ اب اس میں آپ الجھاؤ کہ کیا ہو رہا ہے۔ بالکل غلط بات ہے کہ ہم اس میں وقت لگائیں۔ ہمارا کام کیا ہے؟ کام یہ ہے کہ ہم جانیں حالات کی نزاکتوں میں ہماری ذمہ داری کیا ہے،
ہماری اپنی ذمہ داری کیا ہے, ہمارے اپنے واجبات کیا ہیں, ہم اسے جاننے کی کوشش کریں. تو میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, سب سے پہلی بات جو ہمیں جاننے کی ضرورت ہے وہ کیا ہے؟ سب سے پہلی بات, اور اس کو گنے, انگلیوں پر گنے, 2 3 4 بات جو باتیں میں اپنے سامنے آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. باختصار بہت ساری باتیں ہیں, لیکن بحیثیت میرے بھائیوں اس موضوع پر گفتگو کے اختصار کے ساتھ جو چند باتیں ہیں اسے اپنے پلے باندھنے کی کوشش کریں, سمجھنے کی کوشش کریں. تو سب سے پہلی ہماری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری اور آپ کی ذمہ داری مدارس کا مسئلہ, مساجد کا مسئلہ, مقدسات کا مسئلہ, اوقاف کا مسئلہ, ہماری ممتلکات کا مسئلہ, ہماری آبرو کا مسئلہ, ہمارے دین کا مسئلہ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے, ہمارے عقیدوں کا مسئلہ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے. اس سلسلے میں ہماری پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ یہ سب آزمائشیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کائناتی, اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کونی یا کائناتی سنت کا حصہ ہے. ہمیں سب سے پہلی بات کیا جاننا ہے؟ یہ ایمان رکھنا ہے, یہ عقیدہ رکھنا ہے. اللہ کا کائناتی نظام ہے, آزمائشیں, مصیبتیں, بلائیں, فتنے, دین, ایمان, عقیدہ, مال, اولاد, عزت, آبرو, ہے نا, سکھ دکھ, ہر طرح کی آزمائشیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں اور ہوگی. اس سے مسلمان بچ نہیں سکتا. اگر ہم سوچیں کہ نہیں ایسا کچھ ہو جائے کہ مصیبتیں آئیں نہیں ہمارے اوپر, پریشانیوں کا جھنجھٹ ہمارے سر پر آئے نہیں, تو یہ بات تو ہمارا سوچنا ہی غلط ہے سوچنا. ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم یہ جانیں کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کا کائناتی نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے, دشواریوں میں مبتلا کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. وَنَبْلُوكُمْ بالشر والخیر فتنہ وإلینا ترجعون. ہم تمہیں خیر کے ذریعے سے آزمائیں گے اور شر کے ذریعے سے آزمائیں گے, اچھائیوں, سکھ پر اور ایسے ہی آسانیوں کے ذریعے سے, خیر اور بھلائی کے ذریعے سے آزمائیں گے, وہ شر اور برائیوں کے ذریعے سے, مشقتوں کے ذریعے سے ہم تمہیں آزمائیں گے. وإلینا ترجعون, اور تم سب ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے. تو ہمیں آزمایا جائے گا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کائناتی نظام ہے, اس سے کوئی بچ نہیں سکتا. جہاں ایمان ہے وہاں آزمائش ہے, جہاں جتنا زیادہ ایمان ہے وہاں اتنی زیادہ آزمائش. ایمان زیادہ ہو, عقیدہ زیادہ مضبوط ہو, یہ عمل زیادہ درست ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی زیادہ ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ سے لگاؤ زیادہ ہو, تو ہم یہ سمجھیں کہ آزمائشیں کم ہوں گی. غلط ہے سوچنا. جتنا زیادہ ایمان ہے اتنا زیادہ آزمائش. تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آزمائش میں ڈال رہا ہے تو یہ خوش آئند بات ہے کہ ہے کہیں ایمان, ہے کہیں عقیدہ اچھا, ہے کہیں تقوی, ہے کہیں صلاح, ہے کہیں نیکی, ہے کہیں عمل صالح. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آزما رہا ہے کہ ہم اس عقیدے پر مضبوط رہیں گے یا نہیں رہیں گے, اس عمل پر اچھی طرح جمے رہیں گے یا نہیں جمے رہیں گے, بل بلائیں گے تو نہیں, ادھر ادھر عقیدے سے بھاگیں گے تو نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ سے نا امید تو نہیں ہو جائیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائے گا. یہ پہلی بات ہے. اب ہماری مشکل کیا ہے کہ ہم اسی مسئلے میں دھوکہ کھا جاتے. دھوکہ کیسے کھاتے؟ زیادہ لمبی بات تو نہیں کرنا اور نہ کوئی سیاسی گفتگو بھی نہیں کرنا ہے. اس طرح سے ہم دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ ہمارا ذہن بجائے اس کے کہ اس طرف جائے کہ بھی اللہ کا کائناتی نظام ہے, اللہ کی کونی سنت ہے نا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی کائناتی سنت ہے کہ اللہ آزماتا ہے ایمان والوں کو. اللہ نے رسولوں کو آزمایا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو آزمایا, اور انبیاء کے بعد جو ایمان والے تھے دوسرے درجے پر, ان کو اللہ نے اسی اعتبار سے آزمایا. جو ان سے کم ایمان والے ہیں انہیں اپنے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمایا. ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتا ہے, اس لیے آزمائے گا. لیکن مشکل کیا ہے؟ ہم اس کو سوچنے کے بجائے کہاں چلے جاتے ہیں؟ ہم سیاسی حالات پر چلے جاتے ہیں. وہ ایسا ہو گیا, فلاں حکومت آ گئی, فلاں پارٹی آ گئی, فلاں مسئلہ ہو گیا, یہ مسئلہ ہو گیا, وہ مسئلہ ہو گیا, وہ ہار گیا, یہ جیت گیا, ایسا ہوتا تو ایسا ہوتا, ایسا ہوتا تو ایسا ہوتا. یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے میرے بھائیو؟ کیا ایک مسلمان بھی اور ایک اہل حدیث بھی ایسا کر سکتا ہے؟ کیا ہمارا ایمان نہیں ہے کہ ایک ذرہ بھی ہوئی زمین پر اگر ہوتا ہے
कोई भी एक जर्रा भी हुई जमीन पर एक पत्ता भी हिलता है, एक जर्रा भी अपनी जगह से टलता है, तो अल्लाह तबारक व तआला की रुबूबियत का हिस्सा है। अल्लाह की मशीयत के बगैर एक जर्रा भी अपनी जगह से हिल नहीं सकता, एक पत्ता भी अपनी जगह से हरकत नहीं कर सकता। जो हो रहा है क्या अल्लाह तबारक व तआला की रुबूबियत के बगैर हो रहा है? भाई कोई हुकूमत में आ गया, कोई हुकूमत से चला गया, कोई अच्छा कर रहा है, कोई बुरा कर रहा है, कोई जुल्म ढा रहा है, कोई मदद कर रहा है, जो कुछ भी हो रहा है दुनिया में, तो क्या ये अल्लाह तबारक व तआला की मर्जी के बगैर हो रहा है? क्या अल्लाह की चाहत के बगैर हो रहा है? क्या अल्लाह तबारक व तआला की रुबूबियत के बगैर हो रहा है? क्या अल्लाह ताला की सुन्नत और उसके तरीके के बगैर हो रहा है? सबसे बड़ा मसला तो यही है कि हम इस तरह के हालात में यह फैसला करना शुरू कर दें कि भाई ऐसे ऐसे हालात से हमें गुजरना पड़ रहा है, क्या करें? हुकूमत ये हो गई, पार्टी ये हो गई, और फला की ताकत हो गई, फला कमजोर हो गया, ऐसा नहीं होता तो ऐसा नहीं होता। मेरे भाइयों, कितनी गलत बात। याद रखो, हमारा और आपका सबसे पहला काम क्या है? ये बात, इस बात का यकीन हो, इस बात पर ईमान हो, इस बात का पुख्ता अकीदा हो कि दुनिया में कुछ भी होता है तो अल्लाह तबारक व तआला की रुबूबियत की बुनियाद पर होता है। क्या कोई दुनिया में कोई काम हो सकता है जो अल्लाह तबारक व तआला की मशीयत के बगैर हो? क्या अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत के बगैर होगा? क्या अल्लाह तबारक व तआला की मशीयत के बगैर, क्या अल्लाह ताला के इख्तियार के बगैर कोई काम हो सकता है? नहीं हो सकता। ईमान का मसला है ये कि हम इसको टोटली किसके हवाले कर दें? बस हमारी अकली टिप्पणियां, हमारे अकली तबसरे और लोगों की बातें, इधर उधर के तजज़िये, बस हम इसी पर डिपेंड हो जाएं और मुतमईन हो जाएं और उसी के पीछे लग जाएं। भाई ऐसा आपके नहीं होने देना, ऐसा आपके नहीं होने देना। मेरे भाइयों, हमें क्या नहीं होने देना है और क्या होने देना है, उसका पता कहां से चलेगा? अल्लाह की किताब से, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से। याद रखो मेरे भाइयों, तो ये सबसे पहली जिम्मेदारी है कि हम ये समझे अल्लाह तबारक व तआला का कायनाती निजाम है, ये हो करके रहेगा। आजमाइशें आएंगी, परेशानियां आएंगी। दूसरी बात जो हमें समझना है वो ये है कि अब आजमाइशें तो आएंगी, तो आजमाइशों में हमें कैसे अपनी जिंदगी गुजारनी है, आजमाइशों में हमारा रवैया क्या होना चाहिए, आजमाइशों से मुकाबला कैसे करना है, आजमाइशों में हमारा और आपका वतीरा क्या होना चाहिए, ये बुनियादी, दूसरा बुनियादी काम है। हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने ईमान का, अपने अकीदे का, हमें अपने अमल का, हमें अपने अखलाक का, हमें अपने किरदार का जायजा लेना चाहिए। कहां तक हमारा ईमान और अकीदा दुरुस्त है, कहां तक हमारा अकीदा दुरुस्त है, कहां तक हमारा सुलूक सही है, कहां तक हम हलाल और हराम की पाबंदी करते हैं, कहां हम अल्लाह तबारक व तआला की वाजिबात और फराइज को अदा करते हैं, कहां तक हमारी और आपकी जिंदगी में नबी की सुन्नत है, कहां तक हम जो जबान से कहते हैं उसके मुताबिक अमल भी करते हैं, हमारा कारोबार कैसा है, कितना हलाल है, कितना हराम है, कितना जायज नाजायज, 1 नंबर 2 नंबर है, कितना हम लोगों के हुकूक को लेते हैं, पामान करते हैं, कितना लोगों के हुकूक को अदा करते हैं, अल्लाह के हुकूक, बंदगान के हुकूक के तई हम कितना अल्लाह तबारक व तआला के सामने जवाबदेही का अकीदा रखते हैं, और इस बात को सोचते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला के सामने हमें खड़ा होना है, जवाब देना है। ये सबसे बुनियादी मसला है। कैसे मुकाबला करेंगे जब अपने ईमान में खड़े ना हो, अपने ईमान में खालिस ना हो, अपने ईमान में खड़े ना हो, अपने ईमान में खालिस ना हो। याद रखो मेरे भाइयों, ये बहुत बुनियादी मसला है। अब वो पहली बात आपने सुन ली कि हमें ये अकीदा रखना जरूरी है कि जो कुछ भी दुनिया में होता है अल्लाह की रुबूबियत का हिस्सा है, अल्लाह का कायनाती निजाम है, उससे कोई बच नहीं सकता। तो अब दूसरा काम हमें जो जानने के लिए है वो क्या है? वो ये है कि हम इस बात को समझें कि अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है। इसकी रहनुमाई अल्लाह का कलाम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान हमें कर रहा है। मेरे भाइयों, अब इस सिलसिले में बहुत सारी आयतें, बहुत सारी हदीसें, मैं 1-2 चीजें आपके सामने पेश करके अगले नुक्ते की तरफ, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ना चाहता हूं। तो दूसरी बात की दलील क्या है? अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर फरमाता है, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। ऐ लोगों, अगर तुम अल्लाह तबारक व तआला की मदद करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी मदद करेगा। व युसब्बित अक़दामकुम, और तुम्हारे कदमों को अल्लाह साबित कर देगा, तुम्हारे कदमों को जमा देगा, तुम डट जाओगे, तुम शिकस्त से बच जाओगे, तुम अल्लाह तबारक व तआला की फज़ल व करम से, उसकी तौफीक से बातिल के मुकाबले में, फितरों के मुकाबले में मजबूत हो जाओगे और फितरों का मुकाबला करने में कामयाब हो जाओगे।
تو اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. کیا مطلب ہے میرے بھائیوں؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مدد کا محتاج ہے؟ وہ تو مدد کرنے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مدد کرنے والا ہے. وہ جس کی مدد نہ کرے اس کی کون مدد کر سکتا ہے؟ جس کی مدد اللہ نہ کرے اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتا ہے. اللہ کے کلام کی آیتیں بہت واضح ہیں, ان ساتھ زیادہ تفصیلات پہ مجھے نہیں جانا ہے. تو بات کیا ہے میرے بھائیوں؟ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے یعنی اللہ کے دین کی مدد کرو گے, اس کی توحید پر قائم رہو گے, اس کے نبی کی سنت پر قائم رہو گے, اس کے حلال کو حلال سمجھو گے, اس کے فرائض کو ادا کرو گے, اس کے محرمات سے اپنے آپ کو بچاؤ گے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو اپنی زندگی میں نافذ کرو گے تو ینصرکم, اللہ تمہاری مدد فرمائے گا. اللہ کے کلام کی آیت کریمہ کو اگر حدیثوں سے سمجھنا ہو, ان حدیثوں کو سامنے لاؤ. اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا احفظ اللہ یحفظک, احفظ اللہ تجدہ تجاہک. اے ابن عباس, اگر آپ کیا فرمایا, اگر کیا تمہیں کرنا چاہیے, اللہ کی حفاظت کرو, اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. اللہ کی حفاظت کرو کیا مطلب؟ اللہ مدد کا محتاج نہیں ہے, اللہ حفاظت کا محتاج نہیں ہے. اللہ کی حفاظت یعنی اس کی توحید کی حفاظت, اس پر ایمان کی حفاظت, اس کے نبی کی سنت کی حفاظت, اس کے حلال و حرام کی حفاظت, اس کے فرائض اور واجبات کی حفاظت. اگر تم اللہ کی حفاظت کرو گے تو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. اگر تم اللہ کی حفاظت کرو گے تجدہ تجاہک, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے سامنے پاؤ گے. وہ فتنوں میں تمہارا مددگار ہوگا, آزمائشوں میں تمہاری حفاظت فرمائے گا, مشکلات میں پریشانی میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری حمایت کرے گا, تمہاری نصرت فرمائے گا. یاد ہے, یہ ہے دوسری ذمہ داری کہ ہم اللہ کی مدد کریں, یعنی جیسے ہی مشکلات آئیں, پریشانیاں آئیں, آج ہماری مساجد کا مسئلہ, ہماری عبادت گاہوں کا مسئلہ, ہمارے مقدسات کا مسئلہ, حرمین شریفین کا مسئلہ, میرے بھائیوں مسلمانوں کے دین کا, ایمان کا, ان کے مال کا, ان کی عزت و آبرو کا مسئلہ, سارے مسئلے ہمیں گھیرے ہوئے ہیں کہ نہیں گھیرے ہوئے ہیں؟ خون انسان سستا ہوتا جا رہا ہے, یہ صورتحال بن گئی ہے. تو جائزہ لو, گریبان میں جھانک کر کے دیکھو یہ کیسے ہو رہا ہے, ذرا ایمان کا جائزہ لو, ذرا عقیدے کا جائزہ لو. یہی معنی ہے اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا. تو ہمیں یہ جائزہ لینے کی ضرورت ہے. صرف ٹپڑیاں, صرف تبصرے اور صرف کیا کرنا میرے بھائیوں, جیسا کہ آج لوگوں نے طریقہ بنا رکھا ہے, اور اس میڈیا کے ذریعے سے ہم یہ بھی نہیں جان پاتے کہ اس میں کیا ہمارے لیے ہے اور کیا ہمارے خلاف, ہمارے لیے درست کیا ہے اور ہمارے خلاف کیا ہے. ہم تو سمجھتے نہیں ہیں میرے بھائیوں, ہم نے وہی معیار بنا رکھا ہے, ہم نے وہی معیار بنا رکھا ہے کیا, جو کچھ زیادہ فیمس ہے, جو کچھ زیادہ چرچے میں ہے, جو کچھ زیادہ نمبر والا ہے, بس وہی سب سے اچھا ہے. جو سب سے زیادہ کیا ہے, وائرل ہے, بس وہی سب سے زیادہ اہم ہے. یہ کون سا معیار بنا رکھا ہے میرے بھائیوں؟ آج تو گانے بجانے, فحاشیاں, عریانیت اور بے حیائی کے سارے کام سب سے زیادہ اونچے ہیں. تو کیا وہ حق ہے, کیا وہ درست ہے؟ ہمیں یہ معیار نہیں طے کرنا ہے. ہمارا معیار کتاب و سنت کی روشنی میں طے ہوگا کہ کون سی چیز ہے جسے ہمیں دیکھنے اور جاننے اور پڑھنے کی ضرورت ہے. میرے بھائیو یاد رکھو, آج لوگوں نے یہ بتا دیا ہے کہ اس کا مقابلہ تم کیسے کرو گے, اس کا مقابلہ تم کیسے کرو گے, اس طرح کے فتنوں کے حالات میں تمہارا رویہ کیا ہونا چاہیے. اب مسلمانوں کو کچھ لوگوں نے کہاں لگا دیا, مظاہرے کرو, ریلیاں نکالو. کسی نے کہا کیا کرو میرے بھائیوں, دھرنا دو. کسی نے کہا کچھ کرو, کسی نے کہا نعرے لگاؤ, کسی نے کہا یہ کرو وہ کرو, کسی نے کہا لائٹ جلاؤ بجھاؤ. اس سے کوئی مسئلہ حل ہونے والا ہے میرے بھائیوں؟ اپنی مصیبتوں کا حل یہاں سے نکالنا چاہتے ہو؟ تمہارے نعروں سے کوئی مسئلہ نہ کبھی حل ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے. تمہاری ریلیوں سے, تمہاری مظاہروں سے, تمہاری شور شرابوں سے کوئی مسئلہ پوری تاریخ میں حل نہیں ہوا ہے. پلٹو اپنے ایمان و عقیدے کا جائزہ لو, پلٹو اپنے سنت کا جائزہ لو, پلٹو اپنے فرائض کا جائزہ لو, پلٹو اپنی ذمہ داریوں کا جائزہ لو. کہاں ہو تم اپنے ایمان و عقیدے, اپنے ایمان و عقیدے کے سامنے؟ کہاں ہو تم اپنے حلال و حرام کے مسئلے میں؟ کہاں ہو تم اپنے فرائض اور واجبات کے معاملے میں؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو بری ذمہ کر سکتے ہو؟ اے اللہ, ہم ایمان و عقیدے میں بالکل کریں, اپنی فرائض کی واجبات کی ادائیگی میں
बिल्कुल पक्के हैं, अपने तकवे के मसले में सबसे ज्यादा खड़े हैं। क्या हम और आप इस मामले में अल्लाह के सामने अपने आप को एक नंबर साबित कर सकते? नहीं कर सकते हैं मेरे भाइयों। इसलिए जायजा लो, जांचो, पड़तालो अपनी ईमान व अकीदे को। ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। अब तो हम मुतमईन हो गए, ये नारे लग रहे हैं, ये रैलियां निकल रही हैं, ये मुजाहरे हो रहे हैं, ये शोर शराबे हो रहे हैं, ये झंडे बंदे निकल रहे हैं। इससे कोई मसला हमारा अकीदा है, ये रुबूबियत का नतीजा है। ईमान वालों को अल्लाह आजमाता है, जांचता है, पड़तालता है। इसलिए इसका हल भी किताब और सुन्नत की रोशनी में हमें जानने की जरूरत है। अब हल क्या है मेरे भाइयों? हल ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम की आयत करीमा में फरमाया, क्या फरमाता है अल्लाह तबारक व तआला? ये पूरा नक्शा अल्लाह ने खींचा, पूरा नक्शा क्या होगा मुसलमानों तुम्हारे साथ, ये यहूद व नसारा अहले किताब तुम्हारे साथ क्या करेंगे, ये बुत परस्त तुम्हारे साथ क्या करेंगे, ये मुशरिकीन तुम्हारे सामने तुम्हारे साथ क्या करेंगे, इस्लाम और मुसलमानों के तई इनका रवैया क्या होगा, इसको अल्लाह तबारक व तआला ने बयान कर दिया। और उसके बाद अल्लाह ने यह भी फरमाया कि तुम्हारी जिम्मेदारी क्या होगी इस तरह के हालात में। अब ये मुसीबतें मेरे भाइयों हमने अर्ज कर दिया, हमारे मुकद्दसात के खतरे, हमारी इबादत गाहों के खतरे, हमारी तालीम गाहों के खतरे, हमारे वक्फ और हमारी जायदादों के खतरे, सारे मसाइल हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये सब तो अल्लाह ने अपने कलाम में बताया, अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ने बताया, नहीं बतलाया। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता सुनो अल्लाह के कलाम को। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है लतुबलउन्ना फी अमवालिकुम व अनफुसिकुम व लतस्मउन्ना मिनल लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लिकुम व मिनल लज़ीना अशरकू अदन कसीरा व इन तत्तकू व तस्बिरू फइन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर। और दूसरी आयत करीमा में इसी तरह के मौजू के सियाक में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है व इन तस्बिरू व तत्तकू ला यदुर्रुकुम कैदुहुम शैआ। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है मुसलमानों इन आयात का जरा जायजा लो, इन आयात को जरा पढ़ो, इसके पैगाम को समझो। आयत करीमा हमसे क्या कहती है, हमारी और आपकी जिम्मेदारियां क्या हैं। ये कोई नया मसला नहीं है मुसलमानों के साथ। अब क्या हो रहा है, ये 1446वां साल हिजरत का, ये 1446 साल हिजरत के चल रहे हैं। एक दो आजमाइश नहीं, न जाने कितनी आजमाइशें आई हैं। और वो वक्त जहां से हिजरत की तारीख शुरू होती है, वो हिजरत की तारीख आजमाइशों की तारीख है। कैसे कैसे हालात से गुजरना पड़ा, क्या ईमान के खतरे थे कि नहीं थे। मुकद्दसात को मेरे भाई मुकद्दसात को पामाल करने वाले कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे। मेरे भाइयों लोगों की माल, लोगों की औलादें, लोगों की जायदादें, लोगों की बीवियां सब खतरे में थी कि नहीं थी। लोगों के घर बार खतरे में थे कि नहीं थे। सब कुछ था, वहीं से तो ये तारीख शुरू होती है मेरे भाइयों। हमने भुला दिया उस पैगाम को कि न जाने कितनी आजमाइशें आई हैं और ये आजमाइशें आती रहेंगी। ये सुन्नत कौनी है अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से, ये होता रहेगा। तो अब हमारा मसला कोई नया मसला नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में इस बात की वजाहत फरमाता है। क्या है, अल्लाह ताला ने फरमाया लतुबलउन्ना फी अमवालिकुम व अनफुसिकुम, तुम्हें जरूर भी जरूर आजमाया जाएगा, जरूर भी जरूर तुम्हें आजमाया जाएगा। फी अमवालिकुम व अनफुसिकुम, तुम्हारे मालों में आजमाया जाएगा, तुम्हारी जानों में आजमाया जाएगा। जानो माल की आजमाइश से तुम्हें गुजरना पड़ेगा मुसलमानों। तुम्हें हमेशा अपनी जान और माल की आजमाइशों से गुजरना होगा। और उसके बाद ये बैनल अदियान, बैनत दियानात, ये मसला भी अल्लाह ने समझाया। कुफ्र इस्लाम के मुकाबले में कुफ्र की अहले किताब यहूद व नसारा की सतीसाकारी हमेशा से कायम रही है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है वला तस्मउन्ना मिनल लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लिकुम, मुसलमानों जानो माल की आजमाइश तुम पर आएगी और तुम जरूर भी जरूर यानी इसमें कोई डाउट नहीं है कि तुम जरूर भी जरूर सुनोगे अपने से पहले वाले यहूद नसारा अहले किताब यानी यहूद नसारा की तरफ से, वह मिनल लज़ीना अशरकू और मुशरिकों की तरफ से, यहूद नसारा की तरफ से, मुशरिकों की तरफ से तुम सुनते रहोगे।
क्या सुनते रहोगे? अदन कसीरा, ऐसी ऐसी बातें जो बड़ी तकलीफ दे होंगी, ऐसी ऐसी साजिशें जो बड़ी तकलीफ दे होंगी तुम्हारे लिए, ऐसे ऐसे हथकंडे प्रोपेगेंडे और ऐसे ऐसे रवैये, ऐसे ऐसे मंसूबे, ऐसी ऐसी कोशिशें, तस्मउन्ना मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब, आगे क्या होना? अदन कसीरा, बहुत ज्यादा तकलीफ की बातें सुनते रहोगे। तो अल्लाह ताला ने फरमा दिया है यहूद नसारा की तरफ से, मुस्लिमों की तरफ से तुम्हें बड़ी तकलीफ दे चीजें सुनने को मिलेंगी, बड़ी तकलीफ दे चीजें, बड़ी तकलीफ दे बातें, बड़े तकलीफ दे मंसूबे, बड़े तकलीफ दे अज़ाइम, बड़ी तकलीफ दे साजिशें, हथकंडे, प्रोपेगेंडे, ये सब तुमको सुनना पड़ेगा। लेकिन इसका मुकाबला कैसे होगा? तो अल्लाह तबारक व तआला का कलाम बता रहा है, मुसलमानों तुम्हारे साथ ये होता रहेगा, कुछ बिलबिलाने की, चिल्लाने की, चीखने की जरूरत नहीं है, बल्कि मुस्तबत होकर के जिम्मेदारी का सबूत देते हुए अपने काम को समझने की जरूरत है। अल्लाह फरमाता है व इन तस्बिरू व तत्तकू, तुम काम करने, कितने काम करने हैं मेरे भाइयों? 2 काम करने हैं। व इन तस्बिरू व तत्तकू, अगर तुम सब्र से काम लोगे और तक़वे की जिंदगी गुजारोगे, अल्लाह फरमाता है इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर, तो ये सब्र और तक़वे की जिंदगी गुजारना ये बड़ी अज़्म और हिम्मत का काम है। ये काम कर लोगे, सबसे बड़ी हिम्मत क्या है? तक़वे की जिंदगी गुजारना और सब्र करना, हक पर डटे रहना। आज सबसे बड़ी हिम्मत का काम क्या समझा जाता है? मीडिया पर तबसरे करो, मीडिया पर बहादुर बन जाओ, मीडिया पर इतनी शुजाअत के मेरे भाइयों कमेंट करके अपनी बहादुरी का सबूत दो, ओल फोल लिखो, बकवास करो, अपनी ज़बान और कलम के जौहर दिखाओ और उससे खुद को और उम्मत को मुसीबत का सामान कर डालो। ये सबसे बड़ी हिम्मत। मेरे भाई ये कौन सा तरीका है? ये कौन सा तरीका है? ये आपके सामने मीडिया खुला हुआ है और आप जो चाहे लिखे, जो चाहे लिखे बोले, उसी को बहादुरी समझते हो? उसी को कमेंट करना, तबसरे करना और होल फोल बातें करना, ललकारना, इसी को बहादुरी समझते हो? आज वो हिम्मत का काम ये नहीं है। और वो हिम्मत का काम क्या है मेरे भाइयों? कि सब्र की और तक़वे की जिंदगी गुजारो। और सब्र और तक़वे की जिंदगी का मतलब क्या है? सब्र का मतलब क्या है मेरे भाइयों? सब्र का मतलब यह है अपना दीन जो है अकीदा, तौहीद का, शिर्क से बेदारी का, उस पर डटे रहो। दुनिया इधर से उधर हो जाए, आजमाइशों का तूफान खड़ा हो जाए, फितनों का बादल हमें घेर ले, लेकिन कुछ भी हो जाए अपने अकीदे से नहीं हटोगे, अपनी तौहीद से नहीं हटोगे। शिर्क से बेदारी का कुछ भी हो जाए, हमेशा बेदारी का ऐलान करते रहोगे, ढुलमुल नहीं हो जाओगे, कमजोर नहीं हो जाओगे, इधर उधर उथल पथल की तरफ नहीं चले जाओगे, बल्कि अपनी तौहीद पर डटे रहोगे, सुन्नत पर डटे रहोगे। हवस, ख्वाहिशात नफ्सानी, शख्सियत परस्ती, अकल परस्ती और दुनियादारी, मेरे भाइयों मादियत परस्ती, हवस, तमा, लालच, हिर्स, हवस और इन तमाम चीजों की तरफ नहीं भटकोगे, सुन्नत को अपनी जिंदगी में नाफिज करोगे। ये है असल में सब्र, डटना सुन्नत की राह पर, डटना तौहीद और अकीदे सहीहा की राह पर, और उसके बाद इस पर डटने के साथ साथ आने वाली मुसीबतों को खंदा पेशानी से बर्दाश्त करना। अल्लाह ने जिन बातों का हुक्म दिया है उनको बजा लाना। तकवा क्या फरमाया? सब्र करना और तकवा अल्लाह तबारक व तआला की मामूरात पर अमल करना। जिन बातों को अल्लाह ने करने का हुक्म दिया है उसे करना, और जिन बातों से अल्लाह ने मना कर दिया है उसे अपने आप को बचाए रहना। यह है तकवे की जिंदगी जीना। फिर मामूरात व तर्कुल मनहियात, करने वाले कामों को करना और ममनू कामों से अपने आप को बचाना। जाओ देखो अपने अपने गिरेबान में झांक झांक करके, मैं अपनी हालत का जायजा लूं, आप सैयद अमर बकर सब अपने अपने हालात का जायजा लें। कितना है हमारा ईमान, कितना है हमारा अकीदा, कैसी है हमारी तौहीद, कैसी है हमारी सुन्नत, कैसे हमारे फराइज, कैसी है हमारी नमाजें।
मेरे भाई जायजा लेकर के देखो, अपना कारोबार देखो कितना हलाल और हराम है, लोगों के हुकूक अदा करते हैं कि नहीं करते, अपने खानदानी हालात, अपने आईनी हालात में कितना खरे निकलते हैं, समाजी हालात, इल्म से, दावत से हमारा ताल्लुक कितना है, उलमा से मोहब्बत कितनी है, मसाजिद से, मदारिस से, जामियात से, दीन की तालीम से, तरबियत से कितना लगाव है, तौहीद और सुन्नत के मिशन से कितनी दिलचस्पी है, ये सब जायजा लेकर के देखो। वावेला मचाने को जिहाद समझते, वावेला मचाने को, शोर करने को, ये जज्बातियत किसी मसले का हल कभी भी नहीं रही है। सबसे ज्यादा वो वावेला मचाते हैं, अरे हमारी मस्जिदों पर, हमारे औकाफ पर, हमारे मदरसों पर, हमारे कब्रों पर हमला हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, और उनके अकीदे देखो तो शिर्क से भरे हुए, कब्रों के पुजारी, सरों को आस्ताओं पर टेकने वाले, सुन्नत के बजाय उम्मतियों के पीछे चक्कर लगाने वाले, सुन्नत को छोड़कर उम्मतियों की राह पर चलने वाले, अपनी ख्वाहिशात की गुलामी, आकलों की गुलामी, शख्सियतों की गुलामी, पीरों की, फकीरों की गुलामी कर रहे हैं। और जिंदगी का मामला देखो, हलाल और हराम की कोई परवाह नहीं, सूद आए आने दो, रिश्वत आने दो, माल आना चाहिए बस, इससे कोई मतलब नहीं है कि हलाल और हराम। ये हालत है। और सबसे ज्यादा नारा लगाने वाले दिमागी, ये जज्बातियत वाला ताल्लुक किसी काम का नहीं है। प्रैक्टिकल तुम्हारी जिंदगी, कितना ईमान और अकीदा आपका सही है, कितना अमल आपका सही है, कितना हलाल और हराम की पाबंदी है, कितने फराइज़ और वाजिबात में आप पाबंदी करते हैं, कितना दीन से मोहब्बत है, कितना दीन के लिए आप वक्त की, जान की, माल की कुर्बानी देते हैं, कितना दीन की मजलिसों को आबाद करते हैं। मस्जिदें वीरान है और सबसे ज्यादा दीन के दिफा करने की बात करते हैं। मेरे भाई, ये तो बहुत लंबा मौजू है कि मैं तबसरे करूं, लेकिन इसका ये मौका नहीं, मैं इशारे करना चाहता हूं। यहां है वह इन तस्बिरू व तत्तक़ू, अगर तुम सब्र करोगे और तक़वे की, अब सब्र करने की बात करो तो बहुत चिल्लाते। ये देखो, ये अपने उलमा जो है ना, ये अहले हदीस उलमा, इनकी मिंबरों से, इनके स्टेजों से जब देखो तब सब्र की बात, ये लोग सब्र की बात करके उम्मत को बुज़दिल बनाना चाहते हैं। सब्र की बात मत करो, अल्लाह तबारक व तआला सब्र की बात करता है, सब्र की बात करता है। तो हमारे उलमा आपको सब्र करने की तरकीब नहीं करेंगे तो क्या करें? भला बताइए। सब्र करना बुज़दिली नहीं है, सब्र करना सबसे बड़ी हिम्मत की बात है। अल्लाह फरमाता है इन्ना ज़ालिका मिन आज़मिल उमूर, ये सबसे बड़ी हिम्मत और हौसले की बात है। मेरे भाई, सब्र करना, तौहीद सुन्नत पर, अकीदे पर, अमल पर, इस्लाम पर डटे रहना, जमे रहना, ये हिम्मत की बात है। अल्लाह जैसे कहे, नबी का जो फरमान कहे, उस पर डटे रहना, ये हिम्मत है, ये बुज़दिली नहीं है। तो ये तो मेरे भाइयों, ये नारे लगाने वाली कौम, ये मुजाहरे करने वाली कौम, ये धरना देने वाली कौम, ये वावेले, ये रैलियां निकालने वाली कौम, ये रास्ते जाम करने, मुजाहरा करने वाली कौम हमको, हमारे उलमा को कहती है कि ये बुज़दिल बना रहे हैं। जाओ, अल्लाह का कलाम कहता है सब्र करो। हमारे उलमा इसी बात को आपके सामने पेश करते रहेंगे। तुम उन्हें बुज़दिल कहना चाहते हो, कहते रहो, ये बुज़दिली नहीं है मेरे भाइयों, ये हिम्मत है। और क्या फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने, इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा होगा दूसरी आयत में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, अल्लाह फरमाता है इन तस्बिरू व तत्तक़ू ला यदुर्रुकुम कैदुहुम शैआ, अगर तुम सब्र करते रहोगे और तक़वे की जिंदगी गुजारोगे, अल्लाह का वादा है, मुसलमानों सुन लो, अल्लाह तबारक व तआला का वादा है, ये दुश्मन तुम्हारे, इनकी चालें तुम्हें कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगी। न यहूदी को नुकसान पहुंचाएगा, न ईसाई तुम्हारा कुछ बिगाड़ सकेगा, न ये शिर्क और कुफ्र करने वाले और बुतों के पुजारी तुम्हारा बाल बेगा नहीं कर सकेंगे। अल्लाह क्या फरमाता है, ला यदुर्रुकुम कैदुहुम शैआ, इनकी चालें, इनके मकरूफरेब, इनकी साजिशें, इनके हथकंडे, प्रोपेगेंडे, इनके खुफिया नापाक मंसूबे, ला यदुर्रुकुम कैदुहुम शैआ, ये तुम्हें कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ये अल्लाह तबारक व तआला का वादा है। समझाना आपने, नतीजा क्या निकलेगा? कोई बाल बेगा नहीं कर सकेगा। तो ये तीसरी बात। चौथी बात क्या है मेरे भाइयों? चौथी बात ये है, अल्लाह तबारक व तआला पर सिक़ा, अल्लाह तबारक व तआला पर क्या रखो? यकीन रखो।
आजमाइशें आएंगी, मुश्किलात आएंगी, परेशानियों का सामना होगा, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला पर यकीन रखो। अल्लाह तबारक व तआला मददगार है। सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला का दरवाजा खुला होता है। अल्लाह तबारक व तआला पर यकीन रखो, वो मदद करेगा, वो मदद करेगा। वकाना हक़्क़न अलैना नस्रुल मुमिनीन, मुसलमानों की, मोमिनों की मदद करना हमारी जिम्मेदारी है। हम पर हक है, वाजिब है कि हम क्या करें, ईमान वालों की मदद करें। तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से वादा है कि मुसलमानों की, मोमिनों की अल्लाह तबारक व तआला मदद फरमाएगा। शर्त यह है कि हम सही मानों में ईमान वाले बन करके रहें। याद रखो मेरे भाइयों, ज्यादा बिलबिलाने की जरूरत नहीं है, उसूलों की जिंदगी गुजारो, अमली जिंदगी में अपने आप को सच्चा ईमान वाला अल्लाह के सामने पेश करके देखो। अल्लाह की मदद के दरवाजे खुलते हैं कि नहीं खुलते। मेरे भाइयों, अगर हम और आप ईमान और तक़वा की, सब्र की जिंदगी गुजारे, अल्लाह ताला मुश्किलात को आसान करने वाला है। हम आयत करीमा पढ़ते हैं, इन्ना, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील। याद रखो मेरे भाइयों, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम है, पीछे आप पर ईमान लाने वालों की तादाद है, उनके पीछे फिरऔन और फिरऔन का लश्कर है, सामने ठाठे मारता हुआ समंदर है। मेरे भाइयों, मौत बिल्कुल सर पर मंडला रही। क्या होगा? पीछे से दुश्मन का लश्कर, सामने समंदर ठाठे मारता हुआ। कहां जाए मुसलमान, कहां जाए मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान रखने वाले? परेशान हो गए, बेचैन हो गए। इन्ना लमुदरकून, ए मूसा अलैहिस्सलाम, अब तो हम पकड़ लिए जाएंगे, कहां जाए, कहां भागे, अब तो हमें मरना ही मरना है। मौत हमारी आंखों के सामने बढ़ा रही है, ये समंदर हमें ले डूबेगा, पीछे से दुश्मन हमें घेरे जा रहा है। लेकिन सिर्फ एतमाद अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर, यकीन मुसलमान का होना चाहिए। इब्राहिम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? कल्ला, कल्ला, जब सको शुभा पैदा हो जाए, जब बिलबिलाहट और कमजोरियां सामने आए, तो ये बात याद रखो, कल्ला इन्ना मई रब्बी सयहदीन, इन्ना मई रब्बी सयहदीन, हरगिज नहीं। हज़रत मूसा ने क्या फरमाया? हरगिज नहीं, यकीनन मेरे साथ मेरा रब है, सयहदीन, बहुत जल्द मुझे रहनुमाई कर देगा, बहुत जल्द अल्लाह तबारक व तआला मुझे बता देगा क्या रास्ता है इस मुसीबत से निकलने का। और चंद मिनटों में अल्लाह तबारक व तआला ने रास्ता दिखा दिया कि नहीं दिखा दिया? अल्लाह तबारक व तआला ने और ठाठे मारते हुए समंदर पर हुक्म दिया कि लाठी मारो, लाठी मारी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने, अल्लाह तबारक व तआला ने दो हिस्सों में तक़सीम कर दिया और उन्हें किनारे दोनों तरफ इकट्ठा कर दिया और बीच से खुश्क रास्ता निकाल दिया। मूसा अलैहिस्सलाम और उन पर ईमान लाने वाले पार हो गए और यूं पार किया हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उन पर ईमान लाने वालों ने फिरौन को और फिरौन के साथियों को उसी रास्ते में कदम डालते ही वो मिल गया और उस ठाठे भी मारते हुए समंदर ने अपनी लपेट में ले लिया। और बहरहाल बात लंबी है, तो अल्लाह तबारक व तआला पर क्या होना चाहिए? सिफा होना चाहिए, एतमाद होना चाहिए। ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। जब खाने काबा को, मुसलमानों, हमारी मस्जिदें, हमारे औकाफ, हमारी जायदादें, अगर ये मसला ज्यादा परेशान कर रहा है ना, तो शराइत पर उतर कर अल्लाह तबारक व तआला के इस कलाम की सच्चाई को अपने दिल और दिमाग में लाओ। कोई नहीं, अल्लाह इबादत करने वाला है। सही मानो ईमान वाले तो बच करके दिखाओ। अब्दुल मुत्तलिब जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा, जानते हो ना वाकया अब्रहा नजाशी यमन का, जब वो आया, अब्रहा हबशी, जब उसने आया और आकर के लश्करों, हाजियों का लश्कर लेकर के खाने काबा को ढाने के लिए आया। जानते हैं कि नहीं जानते? ढाने के लिए आया। उस वक्त अब्दुल मुत्तलिब थे, कौम के सरदार, नहीम जहीम, खूबसूरत और बड़ी मोतबर और बावकार शख्सियत के मालिक। उनसे राब्ता हुआ, कमांडर ने हुक्म दिया और अब्दुल मुत्तलिब के 200 ऊंटों पर इन लोगों ने कब्जा जमा लिया, अपनी तहवील में ले लिया। बड़े परेशान हुए अब्दुल मुत्तलिब। अब बुलाया कि भाई बताओ क्या चाहते हो, क्या चाहते हो? अब्दुल मुत्तलिब ने कहा क्या चाहता हूं, मेरे 200 ऊंट तुमने कब्जा कर लिए, वो 200 ऊंट मेरे हवाले कर दो बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। कहा समझ में बात नहीं आती, मैं तुम्हारे घर, अल्लाह के घर को ढाने के लिए आया हूं, ये हाथियों का लश्कर तुम्हारे सामने है, तुम्हें इस घर की फिक्र नहीं है, अपने 200 ऊंटों की फिक्र लगी हुई है।
अब्दुल मुत्तलिब ने क्या जवाब दिया था? वो तो मुशरिक थे, दुनियादारी उनके यहां थी, लेकिन एक ईमान जो था अल्लाह तबारक व तआला के घर होने का मसला, अल्लाह तबारक व तआला की रुबूबियत पर ईमान, उसके बुनियाद पर कहा आना रब्बुल इबिल रुद्दूनी इलैया इबिली। बस मैं कुछ नहीं चाहता, मैं ऊंटों का मालिक हूं, मैं ऊंटों का मालिक हूं, मैं ये चाहता हूं कि मेरे ऊंट मेरे हवाले कर दिए जाएं। बस कहा ये घर तो हम ढाने के लिए आए हैं, कहा मैं ऊंटों का मालिक हूं, मुझे अपनी जायदाद की फिक्र है कि मुझे मेरे ऊंट मिल जाएं। रहा मसला इस घर का, वलिल बैति रब्बुन फिस समाई सयमनउकान हो, मुझे इसकी परवाह नहीं है। ये घर जो है ना अल्लाह का घर खाने काबा, इसका रब है, इसका मालिक है आसमान में, वो इसकी हिफाजत करेगा और इस घर से तुमको दूर रखेगा, तुम्हें इससे दूर रखेगा। इसलिए मुझे इसकी फिक्र नहीं है, मुझे अपने ऊंट की फिक्र मेरे वापस कर दो और ये घर इसका घर है। अल्लाह तबारक व तआला अपने घर की हिफाजत करने वाला है। मेरे भाई वो तो काफिर थे, मुशरिक थे, दुनिया से चले गए, हम ईमान वालों की जिम्मेदारी है, अपनी जिम्मेदारियां अदा करो, अल्लाह तुम्हारी मुकद्दसात की हिफाजत करेगा, तुम्हारी मस्जिदों की हिफाजत करेगा। हम मस्जिदों को वीरान छोड़ दे, अपनी आजाद जिंदगी गुजारें और बिल बिलाए कि हमारे मुकद्दसात जा रहे हैं। कहां से हिफाजत, कहां से उम्मीद लगा के बैठे हो? वह तमन्ना अल्लाहिल अमानी, झूठी तमन्नाएं, झूठी आरज़ुएं, ये कभी हमें कामयाबी की तरफ नहीं ले जा सकती। बहरहाल मेरे भाइयों, आखिरी एक बात 2 मिनट में बोलना है। एक और जिम्मेदारी है इस तरह के हालात में, वो जिम्मेदारी ये है मुसलमानों, नबी दुनिया में नहीं है, अब नबी के वारिसीन जो सच्चे हैं ये हमारे सबसे बड़े खैरखां हैं। इन तमाम मसाइल में, इससे बड़े मसाइल में, इससे बड़ी मुसीबत में, आफत में हमारी और आपकी जिम्मेदारी क्या है? अपने सच्चे उलमा से जुड़े रहो, उनकी हिदायत, उनकी रहनुमाइयां, उनकी तालीमात, उनकी अपीलों की तरफ ध्यान दो, जल्दबाजी मत करो। बड़े जल्दी बेचैन हो जाते हो, इधर से उधर से दुनिया भर की बातें आती हैं, आप मायूस होने लगते। हमारी जमात कुछ नहीं बताती, हमारे उलमा कुछ गाइड नहीं करते, हमारे उलमा नहीं बताते हमें क्या करना चाहिए। ये देखो फला फला की तरफ से फला फला बयान आ गया, लेकिन हमारी जमात कुछ बोलती नहीं, हमारे उलमा कुछ बताते नहीं। अरे नहीं बताते, चुप रहते हैं, तुम भी चुप रहो, चुप रहते हैं, चुप रहो। नहीं कुछ करने के लिए कहते हैं तो ना कुछ करो, वो ज्यादा जानते हैं कि तुम्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अपने उलमा से जुड़े रहो। बड़े बड़े फितनों में उम्मत के उलमा ने उम्मत को फितनों से बचाने का बड़ा किरदार निभाया है। और हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद ही बड़े मसले पैदा हुए। मुनकिरीन मेरे भाई ज़कात के और ऐसे ही मुर्तद्दीन के, मदीने के खिलाफ हमला करने वालों के, इस्लाम के दुश्मनों के फितनों ने आकर के इकट्ठा घेर लिया। उस वक्त हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उम्मत को फितनों से बचाने में अजीम किरदार अदा किया। आगे पहुंचो तो हजरत इमाम अहमद बिन हंबल ने फितने खल्क़े कुरान के मौके पर उम्मत की हिफाजत का, उम्मत को फितनों से बचाने में अजीम किरदार अदा किया। इमाम बुखारी के उस्ताद हजरत इमाम अली बिन मदीनी रहमतुल्लाह अलैहि ने क्या कहा था? अअज़्ज़ल्लाहु हाज़ा दीना बिअबी बकर सिद्दीक़ यौम रिद्दा व अबी अब्दुल्लाह अहमद इब्न हंबल यौमल मिहना। अल्लाह तबारक व तआला ने जब लोग मुर्तद हो रहे थे, इस्लाम से बरगश्ता हो रहे थे नबी की वफात के बाद, तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस दीन को इज्जत और ताशान और शौकत अता फरमाई अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के जरिए से। और जब आजमाइश का दिन था, आजमाइश के हालात थे, फितने खल्क़े कुरान चल रहा था, उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने इस दीन को अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैहि के जरिए से मजबूती और इज्जत अता फरमाई थी। तो अपने उलमा से जुड़े रहो, सच्ची उलमा, सुन्नत के उलमा से अपनी वाबस्तगी मजबूत रखो। ये आखिरी बात है, बहुत सारी बातें हैं, इंशाअल्लाह तबारक व तआला किसी और मौके पर बात होगी। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें फितनों के हालात में बिल बिलाने से ज्यादा, बेचैन होने से ज्यादा और मायूसी की तरफ जाने से कहीं ज्यादा अल्लाह तबारक व तआला हमें किताब और सुन्नत के उसूलों को जिंदगी में नाफिज करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें किताब और सुन्नत
اور سلف امت کی سیرت کو اپنے گلے لگانے کی توفیق عطا فرمائے. یہاں نجات ہے, یہاں نجات ہے, یہاں عافیت ہے, یہاں اطمینان ہے, یہاں چین ہے, سکون ہے. اس کے علاوہ آپ بے چین ہوں گے, مشکلات میں, پریشانیوں میں گر جائیں گے, مایوس ہو جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سچ مچ اصولوں کی زندگی جینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.